As far as Dussehra celebrations are concerned, I'm getting some breaking news from Uttar Pradesh's Bareilly at this moment, where remember there have been tensions after the protests had gone on. Now, internet services have been suspended in Bareilly for the next 48 hours, starting 3 p.m. on Thursday. So it's from 3 p.m. At this moment. Today, the internet services in Bareilly and the adjoining areas have been suspended for the next 24 hours. This is in view of the Friday prayers which are going to take place tomorrow. Heightened sense of security in Bareilly. A letter regarding the suspension of the internet facilities has been put out by the administration. The police administration is holding key, in fact, security arrangements. But like I said, it's the festive season. We are hoping that these communal flares up across the country, they settle down. Not something that all of us would be wanting in our country, isn't it? Let me very quickly go across to my colleague Ravish Ranjan Shukla, who is joining me at this moment. Ravish, क्या अभी खबर है? माहौल वहाँ पर कैसा है? इंटरनेट बंद कर दिया गया है कल जुमे की नमाज को देखते हुए? आज देखिए बिल्कुल अंकित, क्योंकि अभी तो माहौल शांतिपूर्ण है बरेली का, लेकिन बरेली में सुरक्षा के बहुत ही कड़े बंदोबस्त किए गए हैं और जुमे की नमाज है कल। आज जो है वो दशहरा है, तो इसी के वजह से एक के बाद एक त्योहार की वजह से माहौल न खराब होने पाए, इसके वजह से अभी फिलहाल 48 घंटे के लिए इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। लेकिन प्रशासन का ये कहना है कि अगर कल माहौल ठीक रहता है, अच्छा रहता है, तो जो इंटरनेट की सेवा है वो पहले भी बहाल की जा सकती है। फिलहाल तकरीबन 9 डिस्ट्रिक्ट की जो पुलिस है वो बरेली के चप्पे चप्पे पर तैनात है, जो कि 23 तारीख को जो घटना हुई है उसके बाद में हाई अलर्ट पर है बरेली की पुलिस। और न सिर्फ बरेली की पुलिस बल्कि आसपास के जिले जो हैं वो भी हाई अलर्ट पर हैं। और इसी के मद्देनजर पैरामिलिट्री फोर्सेस को, बरेली की पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। लगातार जो है वो शहर के अंदर में फ्लैग मार्च हो रहे हैं। आज सुबह भी हमने देखा कि एसओजी की टीम ने पेट्रोलिंग की है कई सारे संवेदनशील जगहों पर, तो सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। कई सारे धार्मिक जो गुरु हैं उनसे भी पुलिस ने बातचीत की है कि कल जुमे की जो नमाज है उसको शांतिपूर्ण तरीके से किया जाए। धार्मिक गुरुओं ने भी अपील की है कि किसी भी तरीके का कोई उत्तेजक नारा नहीं लगाएगा, किसी भी तरीके का कोई उत्तेजक बैनर पोस्टर लेकर नहीं आएगा और शांतिपूर्ण तरीके से जो है वो नमाज कल अदा की जाएगी। जी अंकित। Right, stay on with me. In fact, stay on with me at this moment, Ravish, because what we will try and do, we will also get our viewers little more details as far as this story is concerned coming from Bareilly. The NDTV has in fact accessed the FIR, which has been registered after the protest of I Love Muhammad had gone violent there in Bareilly. Now, remember, it has become a big flashpoint where cleric Tauqeer Raza, who is accused of inciting the mob, is now under arrest, and properties linked to his aides have been demolished. Something that we have seen an easy way for the government of Uttar Pradesh, and many, including the Supreme Court, has questioned the way this so-called bulldozer justice is rolled out so quickly as soon as there is any law and order situation in Uttar Pradesh. In fact, the FIR states that Nadeem and his associate incited the mobs and said, today we will accomplish our goal. Meanwhile, the FIR also suggests that Maulana Tauqeer Raza said, today we must disrupt the atmosphere in the city, even if it means killing policemen. That's the allegation of the police. The writers, according to the FIR, pelted stones, and then of course the ruckus started. Ravish continues to be with me. Ravish, संगीन आरोप जरूर लगा रही है पुलिस। ये एक अलग बात है कि अभी इसको कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होगा, पर FIR में काफी संगीन आरोप पुलिस की तरफ से लगाए गए हैं और एक तरफ कानूनी प्रक्रिया है, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश का बुलडोजर जस्टिस। अंकित, क्योंकि कल जब पुलिस से हमारी बात हो रही थी तो अभी तक 11 FIR को दर्ज किया गया है और 11 FIR में तौकीर रजा समेत तकरीबन जो है वो 82 लोगों को अब तक पुलिस ने गिरफ्तार किया है और 1700 अज्ञात लोगों पर FIR दर्ज हुई है। तो उसी से आप समझ सकते हैं कि इसका दायरा बहुत बड़ा है। और न सिर्फ FIR में ये लिखा गया है कि उत्तेजक नारे लगाए गए, बल्कि ये भी कहा गया है कि उसमें ये भी कहा गया है कि तौकीर रजा ने नदीम और अपने सहयोगियों को बोला था कि वो प्रदर्शन करें और प्रदर्शन के रास्ते में अगर पुलिस वाले भी आ जाते हैं तो उनको भी मार दिया जाए।
तो इस तरीके के गंभीर आरोप उस एफआईआर में पुलिस के तरफ से लिखे गए हैं। तो ऐसे में तौकीर रजा की जो मुश्किलें हैं वो अब काफी बढ़ सकती हैं, क्योंकि जो डॉक्टर जो नफीस है जिनको पकड़ा है, जो कि तौकीर रजा के काफी खास माने जाते हैं, उनके तरफ से भी सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है उसमें ये कहा गया है कि तौकीर रजा पहले मान गए थे कि वो शांतिपूर्ण तरीके से जो प्रदर्शन है वो टाल देंगे, स्थगित कर देंगे, लेकिन उसके बाद में उन्हीं की जो पार्टी है, जो आईएमसी है, जो इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल है, जो खुद तौकीर रजा की पार्टी है, उसके जिला अध्यक्ष ने ये कहा कि नहीं आप इसको करिए। और फिर यू टर्न लेते हुए तौकीर रजा ने शुक्रवार की सुबह जो है वो फिर से एक अपील का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें वो कहते दिखे कि नहीं हमें प्रदर्शन करना है, हमें अपनी ताकत को दिखाना है। तो इस तरीके से ये सारा जो वाकया है इसमें पुलिस, साफ तौर पर पुलिस का कहना है कि इसमें 20 लोगों के पास में पेट्रोल बम और तमंचा, कारतूस बरामद किए गए, यानी भीड़ को भड़काने का 20 लोगों के पास में सामान था। यानी अब आप सोचिए कि आईएमसी जो इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल है उसके जिलाध्यक्ष को जो गिरफ्तार किया गया है, शमशाद को, उनके शमशाद पर आरोप ये लगे हैं। पुलिस की ओर से ये कहा गया, बताया गया कि शमशाद पुलिस के ऊपर में फायरिंग में शामिल था। तो पुलिस का साफ तौर पर ये कहना है कि ना सिर्फ बरेली के कुछ लोग शामिल थे, बल्कि बरेली से बाहर के भी पश्चिम बंगाल और बिहार तक के लोग जो है वो इस भीड़ को भड़काने में और पुलिस के ऊपर में पथराव करने में, हिंसा करने में शामिल थे। तो पुलिस ने इसका दायरा काफी बड़ा कर दिया है। और ऐसे में आपने देखा कि तौकीर रजा के सहयोगियों की तकरीबन 250 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी को भी सील किया गया है। ठीक है बुलडोजर रवीश, we'll keep coming back to you.